You may be having n number of hobbies. You may be having a lot of interest into certain areas that has nothing to do with academics, and still you can make out a very strong career. So I'll be touching base upon not only your hobbies as a career, but also academics, what new age courses and new age colleges are available for you. Right, most of us have only idea about अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ टॉपर्स भी बैठे होंगे and we have people those who are average into studies, right, but still they can be above average as far as career is concerned. So all kind of people are sitting over here. So if I ask you, like, what is the career you want to make, how sure you would be to match up that career with your ability? आपने कोई ड्रीम देखा अपने लिए, that okay, I would like to be this, and what is the ability to complete that dream, उसके बारे में कैसे पता चले? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. डिस्कशन एट दिस एज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, so that you are aware about not only those options where you have concentration of people, but also where you have diversity, where you have, let's say, lesser crowd and more opportunities. So we'll try to go with the slides and try to understand what all careers are available for us. You are from class 11th and 12th? Okay. So may I know, like, where is class 11? Okay. And rest is class 12. How many of you are from science background? 11th and 12th together? Okay. Then commerce, and we also have some from humanities. We have good number from humanities as well. Perfectly fine. All right. So careers uncovered may, let me first of all explain who we are. I am coming from Young Achievers, which is a 25 years old institution now. We have been training a lot of students for offbeat careers. Rather, our specialization is throughout in these last 25 years is that we have been training students and putting students into careers like music, careers like Western music, careers like sculpture making, careers like design, careers like media, careers like filmmaking, careers like advertising. So we are completely offbeat, as far as choices of career making is concerned. So Young Achievers is a front runner, right, that we started in 98, and we have been existing since this day, because we have been making the difference in the lives of people by making them do what they love. That is most important statement, कि आप लाइफ में वो कर पाए जो आपको पसंद है. बट ये कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है. कहना बहुत आसान है that music can be a career, but करने के लिए शायद यहाँ पर you need lot of courage to pick up such careers as a choice. Why? Because people see certain things as only hobbies. स्पोर्ट्स को हॉबीज समझते हैं, म्यूजिक को हॉबीज समझते हैं, फूड मेकिंग शेफिंग को हॉबी समझते हैं, आर्टिस्टिक ड्राइंग को हॉबी ही समझते हैं, सीरियस करियर्स नहीं समझते, जबकि ये बहुत बड़े करियर्स हैं आज के टाइम. राइट. सो अपन अभी बहुत सारे करियर्स को अनलीश करेंगे. we'll try to understand कि what all choices are available with you. But before that, we have been helping students for study abroad. I have good number of people that we have placed internationally into some of the finest colleges, that too with scholarships. And in top Indian colleges, which are new age colleges, we have been really, really good in placing our students into those colleges. So I'll be talking about them as well.
फर्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन. पहला काम खुद से क्वेश्चन पूछना है, आप लोगों को पूछना है अपने आप से, व्हाट हैव यू ऑलवेज बीन नेचुरली गुड एट. ऐसा क्या रहा है दैट यू हैव बीन नेचुरली गुड एट, some areas. You can't be jack of all, first thing. You can be good into some areas. वो क्या एरियाज हैं जो नेचुरल एबिलिटी जहां आपकी है, कोई ऐसा काम जिसको बिना किसी की हेल्प के इंडिपेंडेंटली आप कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एबिलिटी. आर यू गेटिंग? सो नेचुरल एबिलिटी को अगर आपको कैच करना है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ दैट कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां मेरे से अच्छा शायद कोई नहीं है, बिकॉज यू आर यूनिक. अपनी यूनिकनेस पहचानना, व्हाट इज दैट यूनिक एलिमेंट इन यू. ये नहीं कि बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दिस सो आई एम ऑल्सो डूइंग दिस. Who you are individually. So how can you be cheetah in your own life, right? How can you be? Natural ability, natural sense होनी चाहिए. Then what do you enjoy learning most about? ऐसा क्या है जिसको लर्न करना या जिसको समझना या जिस काम को करना आपको बहुत पसंद है. यू स्पेंड गुड टाइम ऑफ योर्स इन डूइंग दैट एक्टिविटी और डूइंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू रियली लाइक. मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग को बहुत एकेडमिक हो, शायद 2-4 लोग होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉन एकेडमिक. दैट आई नो वेरी वेल. स्टडीज किसी को ऐसा नहीं कि दिल से बहुत पसंद होती हैं, जबरदस्ती आप लोग करते हैं, मार्क्स के लिए पढ़ते हैं. एग्जाम हटा दिए जाए तो शायद आप लोग पढ़ना ही छोड़ दें, राइट? सो नेचुरल साइड अगर आपकी देखी जाए तो आप सारे लोग फन लवर्स हैं, राइट? यू वुड लव टू हैव फन, राइट, एज मच एज पॉसिबल. यू वुड लव टू हैव टाइम स्पेंट ऑन योर मोबाइल्स, मूवीज. दिस इज वॉट यू लाइक, और एम आई रॉन्ग? Yeah, most of you. So when we are talking about what do you enjoy learning most about, so understand, ask it from yourself, where you are investing your time. What are those areas where you spend most of your time? What are you known for? आप किन कामों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं? आपका नाम किस बात के लिए फेमस है? आपके लिए कुछ नोटोरिटी भी हो सकती है, यू आर फेमस फॉर दैट. यू कैन बी फेमस फॉर योर सिंगिंग, यू कैन बी फेमस फॉर योर मैनेजिंग, यू कैन बी फेमस फॉर योर आर्ट एंड ड्राइंग, यू मे बी फेमस फॉर योर एकेडमिक्स. बट वॉट आर यू नोन फॉर? किन कामों के लिए आपको जाना जाता है? आपकी करियर उसी तरफ है. What are your top 3 values or things that you hold closest to your heart? वो क्या 3 वैल्यूज हैं लाइफ में जिनको आप बहुत वैल्यू करते हैं? ये वैल्यू सिस्टम कुछ भी हो सकता है. आप अगर कहें कि आपको, अगर सपोज यू वांट टू अर्न मनी, दैट इज ओके, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वैल्यू. बट आप में से कुछ लोग ये कहें कि फाइन, I want to have time for myself. मुझे ऐसा करियर चाहिए जहां मेरे लिए भी टाइम हो, मुझे अपने लिए भी टाइम मिले और मैं अपना काम भी कर सकूं. You need a work-life balance. Some of you may be interested into glamour and entertainment. I want this in my life. क्या वैल्यूज हैं आपकी? क्या वैल्यूज हैं which are very close to you that you want to harness? So based upon those values, you would be able to move forward in your career. So these are introspective questions. ये questions हमको अपने आप से जरूर पूछने चाहिए whenever we talk about a career. And this will make a lot of sense. I'll tell you how.
Before moving into career stream, I would talk about start हो जाएगा डिस्प्ले. कुछ myths हैं. There are few myths that I would like to burst those myths. सबसे पहली स्टेटमेंट होती है, नॉर्मली हमको कहा जाता है, it can be termed as a very motivational statement also, that nothing is impossible for us. We can do anything. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. अगर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस, तो फिर ये लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतनी भीड़ लगा के बैठते हैं, राइट, उसमें से 0.1%, 0.5% रिजल्ट क्यों आता है? 99.5% फेल क्यों हो जाते हैं? अगर मैं कन्वेंशनल एग्जाम्स लूं, IIT JEE या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या मैं बात करूं नीट, अगर इन्हीं एग्जाम्स को अगर हम बात करें, तो यहां पर ऐसा क्यों होता है कि लोग 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 साल भी बैठते हैं एंड आर अनेबल टू क्रैक? क्योंकि सबकी अपनी लिमिटेशन होती है. कोई सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी नहीं है कि वो उतना ही स्ट्रांग हो. सो अगर हम किसी भी एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज ये जरूर समझिए दैट ऐसा नहीं है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. कुछ चीजें आपके लिए इंडिविजुअली इम्पॉसिबल ही होती है. कैन आई मेक अ स्पोर्ट्स पर्सन आउट ऑफ एनी वन? नो. कैन आई मेक अ डिजाइनर आउट ऑफ एनी वन? नो. आई नीड some kind of, some kind of background, some kind of sense that promotes certain careers. So ये careers को समझना, तो ये अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि nothing is impossible, this is a false statement. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि हाँ, मैं इतना कर सकता हूं, ये पार्ट मुझसे हो सकता है, ये पार्ट मुझसे नहीं हो सकता. जितनी जल्दी आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, उतनी जल्दी आप अपने लिए फेलियर्स रिड्यूस कर लोगे. नहीं तो आप लगे रहोगे, राइट, एंड रिजल्ट नहीं आएगा. क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव टू ड्रॉ द लाइन. एंड बिसाइड्स दैट, PCM लेने से बेस बन जाता है, लोग कहते हैं. PCM लेने से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनता है. तो फिर आप ये बताइए कि 80% ऑफ आवर इंजीनियर्स, व्हाई दे आर नॉट एम्प्लॉयड? उनकी जॉब क्यों नहीं लगती? 80% ऑफ इंजीनियर्स या 80% ऑफ ग्रेजुएट्स, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल. जॉब इसलिए नहीं लगती, डिग्री तो है सबके पास, काम नहीं आता है. इंडस्ट्री में वैल्यू आपकी स्किल सेट्स की है. इंडस्ट्री में अगर आप अपने मार्क्स लेके आगे जाएंगे और स्किल्स है नहीं, यू आर अ कंप्लीट फेलियर देयर. कोई जॉब्स नहीं मिल पाएंगी अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है. सो ये नया जमाना है, और नया जमाना स्किल्स के हिसाब से मूव करता है, आपके मार्क्स के हिसाब से नहीं चलता. बट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए. अगर आपको किसी टॉप इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल जाना है, तो आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखे जाते हैं. सो एकेडमिकली अच्छे हो, स्किल सेट स्ट्रांग हो, तो ये और भी अच्छी बात है. लेकिन एकेडमिकली अच्छे नहीं हो और स्किल सेट अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. अगर स्किल स्ट्रांग है, एकेडमिकली इतने अच्छे नहीं हो तो भी चलेगा. You will survive in industry because you know how to work. आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको काम क्या आता है? एंड अगर आप अभी तक इस एज में आपसे पूछा जाए और आप कहें कि आई हैव नो आंसर टू दिस, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है ही नहीं, तो आपके लिए ये समझ लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है करियर का. आपको अपने आप को डिस्कवर करना शुरू कर देना चाहिए कि आपको काम क्या आता है. राइट?
सो पीसीएम लेने से बेस स्ट्रांग हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है, राइट? एवरीबडी कैन, any subject can create a strong base for you dependent on what kind of skill sets you want to own and what kind of skill sets you want to grow with, right? मैथ्स अच्छा नहीं है तो पीसीबी ले लेते हैं. किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है, सो लेट्स गो विथ पीसीबी. अब मुझे आप बताइए, किसी का मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो क्या फिजिक्स स्ट्रांग हो सकता है? बट हम लोग मैथ्स इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वीक होता है और ड्रीम होता है टू बिकम अ डॉक्टर. मैं किसी से भी अगर पूछूं यहां पर, मतलब इवन इफ अ पर्सन हु इज स्कोरिंग 99 एंड अ पर्सन हु इज स्कोरिंग 70, मैं पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मुझे 4 जवाब के ऊपर जवाब नहीं मिलेंगे. आई वॉन्ट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट, और एट द मोस्ट आई वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज. ये लेवल है हमारी नॉलेज का, बस इतना. और सारे यही कहते, सारे यही कहेंगे. ऐसा क्यों? आप 100 लोग, 100 के 100 लोग अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन करियर के मामले में इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी आज आपका दिमाग बंद है, डिस्क्लोज्ड, नैरो है. ये आज भी हमें नहीं पता चलता कि डॉक्टर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या इनके अलावा सिविल सर्विसेज या सीए के अलावा और मैं क्या कर सकता हूं. या पता भी है तो हिम्मत नहीं है कुछ नया करने की. डर लगता है कि कुछ नया करियर होगा तो पता नहीं क्या होगा. इस बात से डर नहीं लगता कि उस करियर में ऑलरेडी 15 लाख लोग फंसे हुए हैं. हर साल 15 लाख लोग उतरते हैं, 20 लाख लोग उतरते हैं, सब एक ही भीड़ में पागलपन की तरह, ऑब्सेशन की तरह दे आर एंटरिंग इनटू वन क्राउड. एक दूसरे से कॉम्पीट करने में लगे हैं. एजुकेशन, डू यू थिंक इज अबाउट कॉम्पिटिशन? एजुकेशन में भी कंपटीशन होना चाहिए क्या? जिसको हम बोलते हैं कि लिमिटलेस है एजुकेशन, तो कहते हैं ना एजुकेशन का कोई एंड नहीं है. सो जिस चीज का एंड नहीं है हमने उसको एंड कर दिया, केवल 4 करियर्स के अंदर खत्म कर दिया. एंड दिस इज आवर एजुकेशन. ये हमारी एजुकेशन है. पढ़ने से कहते हैं दिमाग खुलता है, यहां पर दिमाग क्लोज्ड है. पढ़ने से दिमाग क्लोज हो रहा है. तो भैया इसीलिए बता रहा हूं आप लोग को इंडिविजुअली, करियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आप में से कोई ये सोचे कि करियर काउंसलिंग की जरूरत ही क्या है, तो ये जरूरत है, राइट? एंड ये बिल्कुल अलग प्रोफेशन है. हमारा रोल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग नैरो. वी हैव टू ओपन आवर माइंड, वी हैव टू शो देम मोर थिंग्स सो दैट डाइवर्सिटी हो सके हमारी पॉपुलेशन में, सारे एक ही तरफ ना चले जाएं. अब इंपॉर्टेंट बात है, कॉमर्स कैन बी जस्टिफाइड विदाउट मैथ्स. कहते हैं सब कॉमर्स जैसा करियर जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रोमिनेंटली चाहिए, आई डोंट नो व्हाई पीपल चूज कॉमर्स विदाउट मैथ्स. सबसे बड़ा करियर इन्वेस्टमेंट. जहां पैकेजेस 1-1 करोड़ तक के जाते हैं ग्रेजुएट्स के, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जाना चाहें या इन्वेस्टमेंट को एज अ करियर बनाना चाहें. यू हैव 1 CR एज द स्टार्टिंग पॉइंट्स. Or at a graduate level, also if you want to try with investment, nothing less than 30 lakhs per year. ऐसे करियर्स में जाने के लिए
आपको मैथ्स चाहिए, बिना मैथ्स के यू हैव नो फ्यूचर, स्पेशली इन सच स्ट्रीम्स। कॉमर्स जैसी स्ट्रीम्स में कोई मतलब नहीं बनता बिना मैथ्स के आप आगे बढ़ रहे हो। मैं आपसे पूछूंगा, बताइए क्या करना चाहेंगे आप विदाउट मैथ्स? कॉमर्स में क्या करना चाहेंगे आप? चार्ट अकाउंटेंसी विदाउट मैथ्स क्या? किसी का मैथ्स अच्छा होगा तो वो बेहतर कर पाएगा चार्ट अकाउंटेंसी, या जिसका मैथ्स वीक होगा वो कर पाएगा चार्ट अकाउंटेंसी? कितने ऐसे चार्ट अकाउंटेंट्स हैं जो बिना मैथ्स के चार्ट अकाउंटेंट बन गए हैं? आप डेटा उठाकर देखिए, यू विल फाइंड हार्डली 2% शायद जो गलती से बिना मैथ्स के भी सीए बन गए, नहीं तो ज्यादातर लोगों के पास, सबके पास मैथ्स होता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए, एनालिटिक्स, अगर हम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सीएफए जैसा करियर हमारे लिए क्लोज्ड है। क्या बचता है? लॉ। लॉ में भी मैं आपसे पूछता हूं, कितने ऐसे लोग हैं कॉमर्स में जिनको रीडिंग पसंद है? लॉ एज अ करियर उनके लिए होता है जिनकी रीडिंग एबिलिटी बेहद स्ट्रांग है, एंड प्रोमिनेंटली वहां पर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ज्यादा जा पाते हैं क्योंकि उनकी रीडिंग एबिलिटी कॉमर्स से फार बेटर होती है। और अगर कहें कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर फिर भी लॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए कॉर्पोरेट लॉ करना है, तो कॉमर्शियल लॉज, टैक्सेशन, टैक्सेशन बिना मैथ्स के कितने लोग संभाल लेंगे? जिसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता वो टैक्सेशन में करियर क्या बनाएगा लॉ करने के बाद भी? सो मोस्ट ऑफ द करियर्स कॉमर्स में विदाउट मैथ्स अगर आप जाना चाहेंगे, वो केवल हॉबी बेस्ड हो सकते हैं, आपके एकेडमिक्स से लिंक तो उनका बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट भी मैं मान लेता हूं, चलिए आपकी बात। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर बीबीए कर सकते हैं हम 12th के बाद विदाउट मैथ्स। कर तो सकते हो, लेकिन उसके आगे चलोगे, जितने लोग एमबीए करना चाहेंगे, मान लीजिए उस एमबीए कंपटीशन में आप किन से कॉम्पीट करेंगे? आपके साथ कौन बैठेगा जो आईआईएम्स को कॉम्पीट करने के लिए आपके साथ ही बैठेगा? दैट इज आईआईटीएंस। सो एक ऐसा स्टूडेंट ग्रुप जिसको मैथ्स नहीं आती और मैं उनको कहूं कि आप आईआईटीएंस के साथ कॉम्पीट करिए क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको तो एमबीए करना है आंख बंद करके। सो अगर एमबीए करना है और लेकिन आपको आइडिया नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? सो ये प्रॉब्लम्स होती है, ये मिसमैच होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। आर यू गेटिंग? ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है दैट यू नीड टू सॉल्व। समझना जरूरी है इनको, नहीं तो आगे आप इन्हीं सिचुएशंस में फंसेंगे और इन्हीं सिचुएशंस को फिर याद करेंगे कि मुझे क्या करूं मैं इसमें। राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको आगे कैसे अपने करियर्स को पिक करना है। सो इसके अलावा भी बहुत सारे मिथ्स हैं, राइट, कि ह्यूमैनिटीज कैन बी इजीली टेकन, मतलब ह्यूमैनिटीज काफी आसान होती है। मैं आपसे अगर पूछूं ह्यूमैनिटीज में लर्निंग एबिलिटी के बिना अगर आप ह्यूमैनिटीज में बैठ जाएं तो उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आई कैन चैलेंज यू, आप इतने लोग यहां बैठे हो, आपसे मैं एक एस्से लिखवाऊं तो आप उस एस्से में इतनी गलतियां करके दोगे मुझे कि आप, मतलब ये फैक्ट है, इट विल प्रूव कि हमारी रीडिंग हैबिट्स निल है, हमें पढ़ना पसंद ही नहीं है। कोई आप टॉपर से टॉपर स्टूडेंट हो यहां पर,
मैं आपसे एक ऐसे लिखवाऊंगा, आप उसमें मुझे इतनी गलतियां करके दोगे या सब्जेक्ट मैटर कंटेंट ही नहीं होगा आपके अंदर। वो कंटेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीडिंग एबिलिटी से हम बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं। हम सब चीजें विजुअलाइज करना चाहते हैं लेकिन रीड नहीं करना चाहते। सो बुक्स से जितनी दूर होते जाओगे, ह्यूमैनिटीज का कोई मतलब नहीं है। आप ह्यूमैनिटीज ले भी लो, लेकिन पास भी हो जाओ, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप ह्यूमैनिटीज को अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी इज नॉट स्ट्रांग। सो कम्युनिकेशन इज द मेजर पार्ट इन ह्यूमैनिटीज, रिसर्च इज द मेजर पार्ट इन ह्यूमैनिटीज। वो अगर नहीं है तो फिर ह्यूमैनिटीज में आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। सो उन लोगों को जाना चाहिए ह्यूमैनिटीज में जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको रीडिंग राइटिंग एक्सप्रेशन करना पसंद है, आपको लैंग्वेज का यूज करना पसंद है, राइट, रिसर्च करना पसंद है। ऐसे लोगों को ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। ये नहीं कि जिसके नंबर कम है वो ह्यूमैनिटीज ले लें, राइट। तो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोग को बनानी चाहिए। न्यू एज करियर्स कौन से होते हैं? व्हाट आर न्यू एज करियर्स? अगर हम न्यू एज करियर्स की बात करें करंट टाइम्स के, तो पुराने करियर्स थोड़े से आपको बता दूं। इंजीनियरिंग में सीएस सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट, मैकेनिकल, सिविल, ये सबको पता है। ये साइंस बेस्ड करियर्स हैं। मेडिकल में एमबीबीएस, बी फार्मा, बीडीएस, इसके ऊपर नहीं सोचते हैं। एमबीबीएस नहीं भी हुआ तो चलो बीडीएस कर लेंगे। मम्मी पापा का सपना है टू बिकम अ डॉक्टर, राइट, डॉक्टर कैसे भी बन जाएंगे। किसी का सपना है इंजीनियर बनना, इंजीनियर कैसे भी खराब इंजीनियर बनेंगे, बन जाएंगे, राइट, चाहे कुछ इनोवेट करना नहीं आता हो। आज तक जिंदगी में हमने एक चीज भी अपने हाथ से नहीं बनाई हो। यूज ऑफ साइंसेस, उसको यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यूज ऑफ साइंस इनटू क्रिएटिंग अ लाइव प्रोजेक्ट हमने आज तक नहीं करा हो, राइट। आर्किटेक्चर, लाइफ साइंसेस, ये पुराने करियर्स हैं, राइट। नए करियर्स कौन से हैं? न्यू एज करियर्स कौन से हैं? न्यू एज करियर्स हैं जीन थेरेपी, जीन थेरेपी रिसर्च, बीएससी इन बायोटेक और बीटेक इन बायोटेक, राइट। यू डू रिसर्च ऑन जीन्स टू क्रिएट दोज म्यूटेंट्स, ऐसे म्यूटेंट्स क्रिएट करना जिससे कैंसर जैसे रोगों का इलाज हो सके। ऐसे करियर्स हैं बहुत सारे जिनके लिए आज भी कोई किसी तरह की मेडिसिन काम नहीं कर रही है, उसके ऊपर रिसर्च। अभी कोविड है, कोविड के ऊपर इतना रिसर्च हुआ। एड्स है, उसके ऊपर मेडिसिन नहीं है, आज भी कोई काम नहीं करती है मेडिसिन। यू नीड टू हैव जीन्स थेरेपी एज अ करियर जहां स्कोप है। लेकिन इस करियर के लिए कितने लोगों को पता है कि आई विल गेट इनटू इट? साइंस पढ़ने के बाद भी हम जीन्स थेरेपी में काम नहीं करना चाहते हैं। ये साइंटिस्ट का रोल है। रोबोटिक्स, आप में से बताइए मुझे, जो साइंस पढ़ते हैं, लेट मी टेस्ट यू। रोबोटिक्स कौन सी फील्ड, किस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर आती है? एआई। बस सबने एआई सुना तो एआई हो गया? क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चलो यही बताओ, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बताइए। क्या रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है? नो। आप लोग क्या करते हो भाई?
मतलब इतनी पुरानी ब्रांच, आपको ये नहीं पता कि रोबोटिक्स अगर पढ़ना पड़ गया तो कौन सी ब्रांच के अंडर पढ़ोगे आप, और करना है आपको आईआईटी। वंडरफुल, अपने लिए तालियां बजा दो, जरा बजाओ। मतलब बेशरम भी पूरे हो। तो बात समझिए, अब सुनिए, when we are talking about robotics, it is a branch of electronics and communication. ऑटोमेशन होता है ना, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप ऑटोमेशन लेकर आएंगे, सेंसर्स का यूज होगा वहां पर, तो उसको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंडर ही मानेंगे। रोबोटिक्स में जो पीसीबी बनती है, जो एम्बेडेड फॉर्म में बनती है, उसके ऊपर जो ऑटोमेशन का वर्क होता है, जो डिजाइन बनता है रोबोट्स के फंक्शन के लिए, दैट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिजाइनर्स और इंजीनियर्स। और उसके अलावा जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, चाहे माइक्रो कंट्रोलर्स कह लो, माइक्रो चिप्स कह लो, नैनो चिप्स कह लो आप, राइट, उसके अलावा आप कैपेसिटर्स कह लो, रेजिस्टर्स कह लो, डायोड्स कह लो, इनके नाम सुने कि नहीं सुने आप लोगों ने? या सीधे इंजीनियरिंग में चले जाओगे, फिर कहोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या होता है सर, व्हाट इज दिस? तो भाई इंजीनियरिंग में ऐसा भी मत करो ना कि इंजीनियरिंग का सत्यानाश कर दो आप लोग। बट ठीक है आप लोग कि अभी कंप्यूटर साइंस के पीछे ही जा रहे हो आप लोग, क्योंकि बाकी इंजीनियरिंग तो आपको पता ही नहीं कि इंजीनियरिंग होती क्या है अभी। सो ऑटोमेशन जहां जहां होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होगी, ऑटोमेशन। बिसाइड्स दैट इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या ब्रांच है? साइंस बेस्ड ब्रांच है इकोलॉजी। बताएंगे क्या होता है इकोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या होता है? यार आप लोग साइंस पढ़ते हो, अब ये मत कहो कि इकोलॉजी नहीं पता है आप लोग को। मैं क्लास, आई कैन चैलेंज यू, मैं 6th क्लास के स्टूडेंट को खड़ा कर दूं यहां पर, वो इकोलॉजी बता देगा आपको। क्या होता है इकोलॉजी? या बस उतना ही पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या होता है, उसके अलावा इकोलॉजी आ गया तो पता नहीं क्या होता है। ओके, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। किसी ने बोला था यहां पर एनवायरमेंट? हाँ मुझे पता है बेटा, बहुत होशियार है तू बेटा। एनवायरमेंट, अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, इसमें एनवायरमेंट के ऊपर किस तरह की स्टडी होती है? हाँ, आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज पे आ जाओ, नहीं पता। ecology means that we should be able to save the environment and keep the balance between humans and other species. जितने जंगल्स हमने खत्म करे हैं बीइंग ह्यूमंस, राइट, किस तरह से हम अभी भी एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबल कर सकते हैं, राइट। और ये भी बता दूं आपको कि इकोलॉजी ये एक इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इस समय, मतलब यूनाइटेड नेशन से लेकर के हर जगह आपको एवरीवेयर यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एज एन इकोलॉजिस्ट, राइट। व्हाट यू नीड टू स्पेशलाइज इज, आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए बायोलॉजी में। अगर आप बायो पढ़ेंगे तो उसकी एक ब्रांच है
इकोलॉजी. ओके, सो ये एक स्ट्रॉन्ग करियर है. उसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ नए करियर्स की, तो एक करियर है पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग. पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पायरोटेक्निक? पायरोटेक्निक इंजीनियर्स आर दोज, जैसे आप आईपीएल फॉर्मेशंस देखते हैं, फायरवर्क्स होता है जो स्काई में, जो क्रैकर्स बस्ट होते हैं, उनका जो फॉर्मेशन बनता है, अलग अलग फॉर्मेशंस में वो ब्लास्ट होते हैं स्काई में. तो वो जो इतना सुंदर आर्ट वर्क है, राइट, फायरवर्क्स के साथ, क्रैकर्स के साथ, वो काम जो होता है उसको पायरोटेक्निक बोलते हैं. सो पायरोटेक्नीशियन अगर आपको बनना है, सो यू कैन चूज इंजीनियरिंग, राइट. इंजीनियरिंग में केमिकल्स अगर आप लें, सो यू कैन एक्चुअली बिकम अ पायरोटेक्निक इंजीनियर्स, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांच जिसकी आने वाले टाइम में जबरदस्त स्कोप है. एंड आप देख लीजिए कितने फंक्शंस होते हैं सब जगह. यू नो हाउ पीपल बर्न दी क्रैकर्स. और ये जो ऊंचे ऊंचे जो बिल्कुल बड़े बड़े जो क्रैकर्स होते हैं वो इंजीनियर्स का काम है, राइट. उसके अलावा क्रिप्टो एनालिसिस. क्रिप्टो एनालिसिस क्या काम है? क्रिप्टो एनालिसिस नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी अलग बात है. क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए वेबसाइट्स को हैक करते हैं लोग, तो उन हैकर्स से भी अपनी साइट्स को बचाने का काम वो क्रिप्टो एनालिस्ट करते हैं. क्रिप्टोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको. डेटा साइंटिस्ट आर डिफरेंट, राइट. उनका काम होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, वो स्टैटिस्टिक्स से यूज होता है. बट क्रिप्टोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है टू क्रिएट मैथमेटिकल मॉडल्स जिससे हैकर्स भी हैक ना कर पाए. आपकी जो प्राइम वेबसाइट्स होती है, हाँ जी, वो भी कर सकते हैं इस काम को. लेकिन इसके लिए कुछ अलग स्किल्स चाहिए होती हैं, अलग लेवल चाहिए होता है, तो उसको हम क्रिप्टोलॉजिस्ट बोलते हैं. आप उसमें जा सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें, सो यू हैव मल्टीपल करियर्स इनटू बायो, जैसे मेडिकल टेक्नीशियंस, एग्रीकल्चर टेक्नीशियंस. अब फार्मिंग इक्विपमेंट्स आप देखिए, एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग के टाइम पे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उन इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करा जाता है. पेस्टिसाइड्स के टाइम पे जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो इक्विपमेंट्स कैसे यूज होते हैं, कैसे बनते हैं, उनको बनाना, यूज करना, दैट इज द वर्क ऑफ एग्रीटेक. सो आप बैचलर्स एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं. बियॉन्ड दैट मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल में इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. सो वो जो टेक्निकल मशीनरीज क्रिएट हो रही हैं, एमआरआई स्कैनर्स, बड़े बड़े स्कैनर्स यूज हो रहे हैं, राइट, टू स्टडी द ह्यूमन बॉडी, उसको कैसे यूज करते हैं. ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट बायो रिलेटेड जॉब है, राइट, जो एक बहुत अच्छा स्केच वर्क कर सकते हैं ऑफ द मैप्स और द इमेजेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ताकि एक्यूरेटली ऑपरेशंस करे जा सके. सो ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट. ऐसे बहुत सारे नए करियर्स हैं जिनकी तरफ आपको जाना चाहिए. कॉमर्स बेस्ड करियर्स में अगर मैं बात करूं, तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत बड़ा करियर है. सीएस चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, ये सारे करियर. उसके अलावा नए करियर्स में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैसे आपकी वेल्थ को विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे उस वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं, राइट, सच वर्क्स. उसके अलावा
ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारे फील्ड कॉमर्स बेस्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर मैथ्स चाहिए, और मैथ्स छोड़ के कॉमर्स में आगे बढ़ना इज अ वेरी वेरी टफ जॉब, क्योंकि कॉमर्स के सारे करियर्स के ऊपर नजर रहती है पीसीएम के लोगों की। वो सीधे वही करियर्स पिक करते हैं, आगे चल के कॉम्पीट करेंगे आपके साथ, बिना मैथ्स के आप कैसे उनके साथ कॉम्पीट कर लेंगे। सो ये पार्ट बहुत अच्छे से समझिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज में अगर मैं जाऊं तो एंडलेस करियर्स है। चलेगा सर ये? या कुछ करियर्स जैसे डिजाइनिंग बैकग्राउंड से, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एनिमेशन, इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइन, इंटीरियर एंड स्पेस डिजाइन, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इतने अमेजिंग करियर्स हैं ये कि समवन हु इज गुड विद ड्राइंग एंड स्केचिंग और समवन हु इज क्रिएटिव, वो ये सारे करियर्स हैंड्स ऑन करियर्स हैं जिसमें डू इट योरसेल्फ, DIY टाइप, यू हैव वर्क पैटर्न, 80% लैब में काम होता है, 20% काम आपका क्लासरूम थ्योरी में होता है। सो ऐसे करियर्स भी आप पिक कर सकते हैं जहां प्रैक्टिकल नेचर ऑफ वर्क ज्यादा है, जैसे डिजाइन, राइट? सो व्हाई वी आर नॉट अवेयर अबाउट सच थिंग्स? उसके अलावा फॉरेंसिक्स, साइंस बैकग्राउंड के हो आप, PCM और PCB, यू कैन मेक आउट अ करियर इनटू फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स और एक ब्रांच है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। हाँ जी, ह्यूमैनिटीज, ध्यान से इधर भी ध्यान दो। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप न्यू एज करियर्स पिक करेंगे, वहां भीड़ आज भी नहीं है, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू टॉप कॉलेजेस इज वेरी हाई। या आप एवरेज कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो, राइट? ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। अगर आप भीड़ में रहना चाहेंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि वो आप ज्यादा से ज्यादा एवरेज आउट हो जाओगे। तो ये सारे करियर्स मैंने आपको बताए। कुछ और करियर्स हैं इसमें, यू कैन हैव अ लुक। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये बीटेक है, बीटेक इन बायो, computational biology. So can you know that, can you believe that bio students can do BTech in computational biology? अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो, राइट? उसके अलावा ये सारे करियर्स हैं आपके पास, बायो बेस्ड है। ह्यूमैनिटीज में डिजाइन मैंने आपको बताया। हॉस्पिटैलिटी एक और करियर है। हॉस्पिटैलिटी में होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एयरलाइंस, राइट, केबिन क्रूज, ये जितने भी बड़े बड़े आप लाइनर्स हैं, जो शिप लाइनर्स हैं, दोज हु आर सेलिंग, राइट, वहां पर भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज चाहिए, राइट? तो ये सारे एरियाज में यू नीड पीपल विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जैसे शॉपर स्टॉप में डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले कैसे इतना अपीलिंग हो जाता है, दैट इज द वर्क ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजर्स। उसके अलावा जर्नलिज्म, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, पब्लिक रिलेशंस, अगर आपको इमेज बनानी आती है, हाउ यू कैन डेवलप इमेज, हाउ यू कैन मेक ब्रांड्स, हाउ यू कैन क्रिएट दोज ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज के साथ काम करना है, जॉइन पब्लिक रिलेशंस,
एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ये बहुत सारे करियर्स हैं। इसको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी ले सकता है। और ये सारे करियर्स केवल ह्यूमैनिटीज बेस्ड नहीं है, ये इंटरेस्ट बेस्ड है। म्यूजिक प्रोडक्शन, अमेजिंग स्कोप। साउंड इंजीनियरिंग में बीटेक होती है, किसी को बीटेक करनी है साउंड इंजीनियरिंग में भी कर सकता है, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है और बीटेक करना चाहता है। राइट, व्लॉगिंग, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग, यू कैन राइट योर आर्टिकल्स, वेब सीरीज बना सकते हैं, ये भी आर्टिस्टिक वर्क है, मीडिया फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं डिजिटल ह्यूमैनिटीज। आजकल एक नया फील्ड निकल के आया है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज। सो वहां पर ये सारे डिजिटल जितने भी ये करियर्स हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं, ये मोस्टली डिजिटल ह्यूमैनिटीज है। इसके अलावा वेब सीरीज मेकिंग के अलावा पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, टेलीविजन प्रोडक्शन, लॉ, बिकमिंग अ क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है? जो एक्सकेवेशंस में, डिगिंग में हेल्प करते हैं और प्रिजर्व करते हैं उन चीजों को जो भी आफ्टर एक्सकेवेशंस आपको मिलती हैं। सो हिस्टोरियंस के साथ काम करना, राइट, क्यूरेटर्स इज वन जॉब। पॉलिटिकल एनालिस्ट, सो पॉलिटिकल एनालिस्ट आप बन सकते हैं अगर आप सोशल एक्टिविस्ट है या सोसाइटी के साथ आपका कुछ अपना ही कनेक्ट है। सो यू कैन बिकम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो। सोशल मीडिया मैनेजर, इनकी बहुत स्कोप है आज के टाइम। आप देखिए जितना भी प्रमोशन हो रहा है, जितना भी वर्क हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करियर है, एडिटिंग, क्रिएटिव राइटिंग या बिकमिंग अ शेफ, फूड, बेकिंग, पैटिसरी, ये सब बहुत बड़े कारोबार हैं, बिजनेस हैं, और ये सारे करियर्स एंटरप्राइजिंग हैं। सो इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहता हूं, देर आर मोर देन 6,500 करियर्स एंड वी हैव अवेयरनेस लिमिटेड टू ओनली 10 to 12 करियर्स। दैट इज अ पिटी। ये हमको सोचना चाहिए कि हम इंडिविजुअली वी आर मेड फॉर व्हाट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। ये नहीं कि जो मेरे साथ वाले कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, ये नहीं कि मेरे दोस्त जो करेंगे मुझे वही करना है। करियर के मामले में यू हैव टू बिकम इंडिविजुअलिस्टिक। ईच वन ऑफ यू इज अ डिफरेंट पर्सन and everybody can choose a different career, and this is just because of lack of career counseling. We have no idea like where to go. We help you to get into some of the top colleges. हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वी ट्राई टू चूज हु शुड डू व्हाट, किसको क्या करना चाहिए। दिस इज विद द हेल्प ऑफ वन करियर काउंसलिंग सेशन वी कैन मेक आउट कि आपको एज एन इंडिविजुअल क्या पाथ परस्यू करना चाहिए। सो वी गाइड यू कि आपको कौन से बेस्ट कॉलेजेस में आप जा सकते हो। टीयर 1 में IITs और ट्रिपल IITs है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, IIMs है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी सेप्ट अहमदाबाद में है, निफ्ट लगभग 20 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। IIFT इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहां 5 years MBA प्रोग्राम आफ्टर 12th होता है। IHMs हैं, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जेवियर्स है फॉर कम्युनिकेशन, ओबराय सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, IIT चेन्नई यू हैव 5 years program in humanities. IITs is offering you 5 years program in humanities, right? And Tata Institute of Social Sciences, TIS, ये कुछ बहुत क्रीम डेला क्रीम बेहद अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट? टीयर 2 में ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं,
They are also like tier 1 and they are more progressive. You have SP Jain, Bombay, Christ, Bangalore, Symbiosis, Pune, Ashoka in Sonipat, Flame in Pune, Kriya in Sri City, Plaksha in Chandigarh, Shiv Nadar in Greater Noida, Narsi Monji in Bombay, Bennett in Delhi, Shulini in Solan, Universal AI in Bombay, UID in Ahmedabad, Masters Union in Gurgaon, and OP Jindal in Sonipat. These are some of the finest colleges that you should aspire to study. इसके अलावा टीयर 3 में दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगा बिकॉज इट इज आउटडेटेड. मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो बहुत बेहद आउटडेटेड लगता है. आई डोंट फील दैट एवरीबडी शुड एक्चुअली एस्पायर टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी. जहां आप 9 बजे निकले और 11 बजे फ्री हो जाए, उसके बाद सोचे हमें करना क्या है. टीचर्स नॉट इंटरेस्टेड टू टीच, स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी, डिस्ट्रैक्शंस 100%. So there is no utility of studying into Delhi University except उसके 8-10 ऊपर के कॉलेजेस छोड़ दे तो नीचे के जो 90% कॉलेजेस हैं they are useless. उनका कोई रोल नहीं है. They are just like our Meerut college in Meerut. So आप सोच लीजिए आपको पढ़ना कहाँ है. टीयर 4 ये अच्छे कॉलेजेस हैं लेकिन आसानी से एडमिशन हो जाता है. तो जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं भी हैं और अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, सो यू कैन स्टडी इनटू यूपीएस, पर्ल, एमईटी, शारदा, गलगोटिया, जेपी, एसआरएम, वीआईटी. दे आर नॉट ग्रेट कॉलेजेस बट दे ऑफर सम वैल्यू. इनके नीचे जाएंगे तो एजुकेशन लेवल बहुत लो हो जाता है. तो दीज आर सम ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस जहां हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं. राइट. अब्रॉड में we deal with top colleges like MIT, Harvard, Stanford, Yale, UCB, UPenn. ये बिल्कुल वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज है. राइट. जहां इंडिया के कोई भी कॉलेज टॉप 200 में भी नहीं आते, ये वर्ल्ड के टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं. टीयर 2 में कुछ शानदार कॉलेजेस हैं. किंग्स, वॉरिक, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. ये कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको टीयर 2 में भी लिया जा सकता है. टीयर 3 जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रांग नहीं है बट प्रोफाइल अच्छी है, वो लोग टीयर 3 में भी जा सकते हैं. टीयर 1 और 2 के लिए एकेडमिक प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग चाहिए. टीयर 4 के लिए एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी नहीं है लेकिन कुछ हॉबी कोर्सेज हैं या कुछ आपके लिए जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड कोर्सेज है वो करना चाहते हो, सो यू कैन गेट इनटू टीयर 4 ऑल्सो. इसके नीचे इंटरनेशनली भी फिर हजारों कॉलेजेस हैं बट दे आर नॉट वर्थ डूइंग देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर. व्हाट वी ट्रेन यू. आप लोग हमारे साथ अगर कभी कुछ ट्रेनिंग्स लेना चाहेंगे, सो वी ट्रेन यू फॉर IP मैट, वी ट्रेन यू फॉर CUET, वी ट्रेन यू फॉर नार्सी मोंजी, वी ट्रेन यू फॉर सिम्बॉयसिस, क्राइस्ट, we train you for NIFT, NID, IHMs, CLAT, लॉ के लिए LSAT, Xavier's के लिए XAT, मुंबई यूनिवर्सिटी, देन IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, UC फॉर डिजाइन, IIT बॉम्बे के लिए. सो ये सारे कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस के लिए जो मैंने आपको बताया, वी प्रोवाइड यू ट्रेनिंग फैसिलिटीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 11th. सो 11th 12th के स्टूडेंट्स सैटरडे संडेज में हमारे साथ ये प्रिपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन गाइड यू विच फील्ड यू आर बेटर एट, कहां आपके रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर आ सकते हैं. सक्सेस वाइज लास्ट 25 years have been great. We have almost you name a college, we have a student into those top universities. So ये सक्सेस कुछ बहुत बड़ी है. लास्ट 25 years में यू कैन अंडरस्टैंड, शायद कोई ही स्कूल होगा यहाँ आसपास जहाँ के स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं हैं, या वो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई वहाँ वो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं. सो ये सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर ही आपको मिलेंगे. आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे. आपको जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज में वी विल हैव आवर स्टूडेंट्स एंड यू कैन गेट द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम.